السلام علیکم پیارے دوستوں، جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو کوفہ کا ذکر بھی ساتھ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ شہر تاریخی مقامات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں اسلام کی ایک ایسی مقدس مسجد بھی موجود ہے جہاں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا وقت گزارا۔ بہت سے صحابہ کرام یہاں تشریف لائے اور اس مسجد سے ایسے واقعات وابستہ ہیں کہ سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ محرم کے دنوں میں کوفہ شہر کے کیا مناظر ہوتے ہیں، لائن آف کوفہ کسے کہا جاتا ہے اور کوفہ کو باغیوں کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو شیر خدا حیدر کرار حسن اور حسین کے والد گرامی حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ بھی دکھائیں گے، جہاں آپ کو غسل دیا گیا تھا وہ مقام بھی دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ ایسی بہت سی زیارتیں کروائیں گے کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ تو چلیے نکلتے ہیں کوفہ شہر کے ایک تاریخی اور روحانی سفر پر، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ کوفہ عراق کے مقدس ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، خصوصاً شیعہ زائرین بڑی تعداد میں اس شہر میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مسجد کوفہ ہے، جو اسلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ کوفہ مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے بھی مقدس ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے 4 سال اسی شہر میں گزارے اور اسے اسلامی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ بہت سے انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے یہاں قدم مبارک رکھے ہیں۔ کوفہ شہر کو باغیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے لوگوں نے خطوط لکھے اور یہاں آنے کی دعوت دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد بہت سے کوفیوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی وجہ سے کوفہ کو باغیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ تقریباً 129 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں تقریباً 2,30,000 افراد آباد ہیں۔ کوفہ شہر دریائے فرات کے کنارے شمال مشرق میں واقع ہے، جبکہ عراق کے دارالحکومت بغداد سے اس کا فاصلہ تقریباً 170 کلومیٹر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوفہ اور نجف اتنے قریب آ گئے ہیں کہ یہ دونوں شہر ایک دوسرے سے ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے زائرین نجف کی زیارت کے بعد آسانی سے کوفہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور بعض اوقات درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہر سال لاکھوں زائرین یہاں آتے ہیں۔ شہر کی معیشت کا ایک بڑا حصہ زائرین سے وابستہ ہے۔ ہوٹل، دکانیں، ٹرانسپورٹ اور دیگر کاروبار اسی وجہ سے چلتے ہیں۔ آج کوفہ ایک زندہ اور مصروف شہر ہے۔ یہاں نوجوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور جدید تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے عظیم فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی کوفہ سے تھا؟ آپ نے ابتدائی تعلیم اسی شہر سے حاصل کی اور بعد میں اسلامی فقہ کے عظیم ترین علماء میں شمار ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائن آف کوفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ان کی بے مثال بہادری، وفاداری اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر وہاں آنے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی حقیقت جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے نمائندے کے طور پر کوفہ بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات اچانک بدل گئے۔ کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، بعض کو لالچ دیا اور بعض کو سزا کا خوف دلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ پہلے ساتھ دینے کے وعدے کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑتے گئے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حق کا راستہ چھوڑا، نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے رہے اور نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفاداری میں کوئی کمی آنے دی۔ آخرکار دشمنوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، لیکن آخری دم تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس بے مثال وفاداری اور قربانی کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائن آف کوفہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی جب کوفہ کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، استقامت اور وفاداری کو احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور ان کا نام تاریخ اسلام کے روشن ترین کرداروں میں شامل نظر آتا ہے۔ دوستوں، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کوفہ میں بیٹھ کر حکومت نہیں کی، بلکہ پوری دنیا کو انصاف اور اسلامی طرز حکمرانی کا ایسا نمونہ دکھایا جس کی مثال تاریخ میں بہت کام دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں کوفہ اسلام کا دارالحکومت تھا، اس لیے دنیا مختلف علاقوں سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک خارجی شخص ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ تلوار کا وار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے آخری 2 دن گزارے۔ ان لمحات میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو انصاف، تقوی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی نصیحت کرتے رہے۔ آخر کار 21
31 रमज़ान अल-मुबारक को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रब हकीकी से जा मिले और यूँ इस्लाम की एक अजीम तरीन शख्सियत ने जाम शहादत नोश किया। आगे वीडियो में हम आपको वो मकाम भी दिखाएंगे जहाँ हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया गया था। मुहर्रमुल हराम और ख़ुसूसन 40 के दिनों में कूफा का मंजर ही बदल जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों ज़ायरीन यहाँ आते हैं। सड़कें ज़ायरीन से भर जाती हैं। हर तरफ अज़ादारी, दुआएं और अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के मनाज़िर नज़र आते हैं। अगर आप पाकिस्तान से कूफा जाना चाहते हैं तो आपको नजफ़ के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान से नजफ़ तक की फ़्लाइट तकरीबन 1,80,000 पाकिस्तानी रुपए तक मिल जाती है। एयरपोर्ट से टैक्सी या बस के ज़रिए तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे में कूफा पहुंचा जा सकता है। जब आप कूफा पहुंचते हैं तो गाड़ी आपको मस्जिद कूफा के करीब उतार देती है। इसके बाद आप बाज़ार की गलियों से गुजरते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। जूं आप मस्जिद के करीब पहुंचते हैं, दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लग जाती है, क्योंकि ये वही मकाम है जहां इस्लाम की तारीख़ के कई अहम वाक़यात रोनमा हुए। जैसे ही आप मस्जिद कूफा के अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहले इसका वसी और अरीज़ सहन नज़र आता है। ये सहन हर वक्त ज़ायरीन से भरा रहता है, जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं, दुआएं मांगते हैं और तारीख़ इस्लाम के इन अजीम वाक़यात को याद करते हैं जो इस मुक़द्दस मकाम से वाबस्ता हैं। मस्जिद के एक जानिब सुनहरी गुंबद दिखाई देता है। इस जानिब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुख्तार सख्फ़ी के मज़ारात मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब सब्ज़ गुंबद के नीचे हज़रत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक भी वाक़या है। हज़रत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के मुअज़्ज़िज़, बहादुर और बाअसर बुज़ुर्गों में शुमार होते थे। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कूफा की सरज़मीन तंग कर दी गई तो इसी वक्त हज़रत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें अपने घर में पनाह दी। वो जानते थे कि ऐसा करना इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इन्होंने हक़ का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। जब कूफा के गवर्नर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को मालूम हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में मौजूद हैं, तो इसने हज़रत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने महल में तलब किया और इन पर सख्त जुल्म किया गया। अगरचा वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बावजूद इन्होंने हक़ का साथ नहीं छोड़ा और आखिरकार इन्हें भी शहीद कर दिया गया। यही वो तारीख़ी मस्जिद है जहाँ हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के आखिरी 4 साल गुजारे थे। आप इसी मस्जिद में नमाज अदा करते, लोगों के मसाइल सुनते और इस्लामी हुकूमत के मामलात चलाते थे। मस्जिद के सहन में एक कदीम कुआं भी मौजूद है। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाले अजीम सैलाब का आगाज़ इस मकाम से हुआ था और बाद में पानी वापस भी इसी जगह से उतर गया था। मस्जिद कूफा के बारे में ये भी बयान किया जाता है कि बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने यहाँ इबादत की। इसी वजह से ये मस्जिद सदियों से अकीदत और एहतराम का मरकज़ बनी हुई है। ये जो पत्थर का सतून आप देख रहे हैं, आज से तकरीबन 1400 साल पहले इसके साए की मदद से नमाजों के औकात का अंदाज़ा लगाया जाता था। मस्जिद का अंदरूनी हुस्न भी देखने के काबिल है। सफ़ेद संगे मरमर पूरी मस्जिद में इस्तेमाल किया गया है, जो शदीद गर्मी में भी निस्बतन ठंडा रहता है। खूबसूरत मेहराबें, बुलंद सतून और शानदार तामीर देखकर इंसान हैरान रह जाता है। इसी तरह अहले तशी की बाज़ रवायात के मुताबिक वाक़या मेराज की रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर लाए थे और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल अदा फरमाए थे। अलबत्ता इन रवायात की तारीख़ी हैसियत के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और इनकी मुकम्मल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात तय है कि मस्जिद कूफा सदियों से इस्लाम की तारीख़ी और इबादत और इल्म और अजीम कुर्बानियों की यादों को अपने अंदर समाये हुए है। दोस्तों, अब हम मस्जिद के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पहुँचकर हर ज़ायर के दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की याद दिलाता है। यही वो जगह है जहाँ वो दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को गम में मुब्तला कर दिया। आज भी लाखों ज़ायरीन यहाँ आकर खामोशी से खड़े होते हैं, दुआएं करते हैं और इन लम्हात को याद करके इनकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, मस्जिद कूफा के करीब ही वो घर भी मौजूद है जहाँ ज़ख्मी होने के बाद हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लाया गया था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अजीम ज़िंदगी का एक तवील अरसा इसी घर में गुजारा। बहुत से लोगों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दारुल अमारा में रहने का मशवरा दिया, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सादा और छोटे से घर में रहना पसंद किया। आज भी ये मकाम ज़ायरीन के लिए इंतहाई अहमियत रखता है और लोग बड़ी अकीदत के साथ यहाँ हाजिर होते हैं। ये जो मकाम आप देख रहे हैं, इस जगह हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत के बाद गुस्ल दिया गया था। दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर। जब आप रोज़े के अंदर दाखिल होते हैं तो इसकी खूबसूरती दिल को अपनी तरफ खींच लेती है। दीवारों और छतों पर शीशों और खूबसूरत नक्श निगार का ऐसा काम किया गया है कि हर तरफ रोशनी और चमक का दिलकश मंजर दिखाई देता है। ख़वातीन ज़ायरीन के लिए एक अलग पर्दे और मखसूस जगह का इंतज़ाम भी मौजूद है ताकि वो आसानी से ज़ियारत कर सकें। दिन रात हज़ारों अकीदतमंद यहाँ हाजिर होते हैं, सलाम पेश करते हैं
और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ादारी, बहादुरी और कुर्बानी को याद करते हैं। मस्जिद कोफा से सीधा रास्ता एक और अजीम शख्सियत के मज़ार की तरफ जाता है। ये मज़ार हज़रत मिसम तिमार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। इनका रोज़ा नहायत खूबसूरत अंदाज में तामीर किया गया है और अंदर दाखिल होते ही रूहानी सुकून महसूस होता है। हज़रत मिसम तिमार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली के नहायत करीबी साथियों और मोहब्बत करने वालों में शुमार होते थे। आप खजूरों की तिजारत किया करते थे और इसी वजह से तिमार यानी खजूर फरोश के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों, कूफा के कदीम बाज़ार भी अपनी एक अलग तारीखी अहमियत रखते हैं। ये बाज़ार सदियों पुरानी इस्लामी तारीख के गवाह हैं। रवायात के मुताबिक वाक़या करबला के बाद जब बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अहले बैत के दीगर अफराद को कूफा लाया गया तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्हीं बाज़ारों में कूफा के लोगों के सामने एक तारीखी खुतबा दिया था। आज जब ज़ायरीन इन बाज़ारों से गुजरते हैं तो वो इन तारीखी वाक़यात को याद करते हैं और इनके दिल गम से भर जाते हैं। तो दोस्तों, ये था कूफा शहर का हमारा शानदार तारीखी और रूहानी सफ़र। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होगी और आपने इस मुक़द्दस शहर के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।